नमस्कार, मैं हूं दीपिका लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मेघालय के री-भोई जिले के नोंगपो में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और टूरिज्म सेंटर ITTC का उद्घाटन किया। उन्होंने एकता मेघालय एग्जिबिट आयन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल्स एडवांटेज का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गरीता, मेघालय टेक्सटाइल्स मंत्री श्री मेदबा लिंगडो, स्थानीय MLA, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार, बुनकार और अन्य स्टेक होल्डर्स मौजूद रहे। जो हमारे 3 MLA ने कहा है कि इसको रखना, ये हमारा प्रिंसिपल है। Yet one more time that the presentation also included. Put your hands together, ladies and gentlemen. Thank you. I mean, you use modern designs. By Creative Society. हम छोटे मैकेनिकल में नहीं सर, ये यहाँ होना चाहिए। The dance and cultural heartbeat of our state, Meghalaya. After this time, we only invite our dignitaries for a brief morning class. Here we have the GI tag and you can put your hands together. हम लोगों का किसी से सहायता मिला ना? It's about do it as okay. विदेशी पर्यटक, इतिहासक और
ट्रैवल ब्लॉगर्स ने हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 को एक कल्चरल हेवन बताया है। किसामा हेरिटेज विलेज में हजारों लोग इकट्ठा हुए, जिसमें 30 से अधिक देशों से मेहमान शामिल हैं। 10 दिन चलने वाले फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स एक बार फिर भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में शुमार हुआ है। लोकल है। Your name, please? Rupali Maurya. Originally, you are from? I'm from Mumbai. Is it your first time being here in Hornbill TV? Yes, this is my first time to visit here, and I'm here for Hornbill Festival. Any message for the people out here in Nagaland? This place, ये place बहुत अच्छी है for influencers के लिए भी ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ये अभी लेस एक्सप्लोर्ड है, बहुत लोगों को पता नहीं है, और यहाँ पे कल्चर्स के बारे में Hello. Hi, Your name, please? my name is Ayung Pom. And what is this tribe form? Yeah, it's a Pom tribe. Anything particular about this form tribe? Yes, Pom tribe is actually situated in the eastern Nagaland. Okay. Our major district is Long Leng. Okay. And what are being displayed here? Only the traditional house, or what are the things displayed here? Now we used to display so many kinds of activities, including the lok drum and folk song, and even the traditional dishes we have prepared a lot inside our store. So, what is the experience of Hornbill Festival this year? Yeah, actually this year it is my first experience, and I'm really amazed to see all. Sir, your name, please, sir? Dimitris, I am from Greece, ancient Greece. My name means the earth, Dimitris. meter is the womb. The earth is a womb which give life. This is my ancient Greek name, Dimitris. Is it your first time here in Nagaland? Yeah, just arrived last night, no time yet to see and to enjoy the place. How do you came to know about this Hornbill Festival? I came to study ancient India, ancient China, before I was in China, and then I had 1 week left. I checked on the internet and I found you have the festival. How do you find the cultures of Naga? Naga, a very nice place to live. It's quiet and the sun, and I like very much the place. I think the place gave this beautiful culture of different cultures and tribes. You say you study about ancient India and China, etc. I mean, yes, I do a study about Indus Valley civilization, Yeah. Harappa civilization. Harappa civilization. I've been to Birana, to Ranchihari, Dholavira, and in Mumbai, in the museum, they organize now a beautiful exhibition about the 4 big civilizations, India, China, Mesopotamia, and Egypt, and they Thank you.
हाँ जी। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इंडिगो की सर्विसेज में आए व्यवधान के बाद एयरफेयर में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए किराए पर सीमा निर्धारित की है। इकोनॉमिक क्लास के लिए किराए इस प्रकार तय किए गए हैं: 500 किलोमीटर तक 60,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर 15,000 रुपये, 1,500 किलोमीटर से अधिक 18,000 रुपये। Every single one of these images, Indigo passengers stranded due to last-minute cancellations, videos show baggage strewn around at airports with no staff to take care of them. Like I said, the system is overwhelmed. हीराचारा बीएसएफ कैंप कैलाश शहर के पास भारत में गैर कानूनी रूप से घुसने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने गोली मारकर ढेर कर दिया। बीएसएफ ने इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराई। सियोनी जिला में तनाव पैदा हो गया जब ये आरोप लगा कि एक एक्टिंग स्कूल प्रिंसिपल ने गीता जयंती कार्यक्रम के दौरान छात्रों को धार्मिक नारे लगवाने के लिए मजबूर किया। अभिभावकों और हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रिंसिपल को पद से हटा दिया गया। मैं 11वीं जी, मेरा नाम आयुष रामटेके। अच्छा, शुक्ला निवासी हूँ। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरी में जी। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित ये हुई है कि जब प्रार्थना करवाते समय हिंदू बच्चों से नमाज पढ़ाया गया। अच्छा, वो भी 16 बार जबरदस्ती करवाया गया। किनके द्वारा पढ़वाया गया ये नमाज? प्रिंसिपल द्वारा। प्राचार्य कौन है यहाँ पर? प्रतीक्षा मानगढ़ जी। अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती की आपके साथ? जी हाँ, जबरदस्ती की। 16 बार बोलने पड़े। कितने बार लगवाए थे नारे? हाथ ऊपर करके बोलो, हाथ ऊपर करके। हमको कार्रवाई चाहते हैं। ये प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए और ये स्कूल में भी नहीं चाहिए। मैम हमको ईश्वर अल्लाह सभी के बारे में बताती थी। हाँ। और हर दिन नए नए शब्द बोलती थी और उस दिन हमको हाथ ऊपर करवा के 16 बार अल्लाह अकबर का नारा लगवाई। अच्छा। जैसे मुसलमान करते वैसे हमको भी कराया गया। अच्छा। सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने विवाद पैदा करते हुए कहा कि वो अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर मुस्लिम एमएलए चाहते हैं और बाकी सीटों को अन्य राजनीतिक नेताओं के लिए छोड़ना चाहते हैं। কিন্তু বাবরি মসজিদ হবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে। পাশাপাশি একটা ইসলামিক 500 বেডের একটা হসপিটাল হবে। এই যে আমাদের সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাইনরিটি দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আরো অনেক দপ্তর নিয়ে তিনি বসে আছেন। আজকে যান, এখানে যে মিডিয়া আছে, ন্যাশনাল মিডিয়া আছে, তিনারা যান বহরমপুর মেডিকেল কলেজে গিয়ে যদি দেখতে না পান যে একটা বেডে 3 জন করে রুগী শুয়ে আছে, কোন রুগী বেড পায় নিচে শুয়ে আছে, ঠান্ডা 3 মেঝেতে শুয়ে আছে, তার স্বাস্থ্যের কি অবনতি হচ্ছে। যারা স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে গিয়ে তাদের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হচ্ছে। আর এই সরকারের নেতৃত্বরা আমাকে বাবরি মসজিদ করতে বাধা দিচ্ছে। এর জবাব গোটা বাংলার মুসলমান সমাজ আগামী দিনে এই সরকারকে দেবে। रीभॉय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी का विरोध जारी रखेंगे। मुर्शिदाबाद में आज ही के दिन जो ये ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है और ममता बनर्जी ने लोगों को आंख में धूल झोंकने के लिए वो अपने एमएलए को सस्पेंड किया, कबीर को, लेकिन बंगाल में
जब तक बीजेपी का कार्यकर्ता एक भी जिंदा है, इनका विरोध करता रहूंगा। और ये बांग्लादेशी मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का आज जिस ढंग से बंगाल को चारागाह बना दिया है, हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जब तक है होने नहीं देंगे। वेस्ट बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर धर्म के आधार पर सिलेक्टिव व्यवहार का आरोप लगाया और इसे भेदभाव बताया। खतरनाक कदम, कोई रिलीजियस प्लेस बनाने के लिए नया कोई अपने प्यार घर बनाने के लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से बाबर का नाम लिया, ये बाबर कौन था? ये भारतीय नहीं था, ये बलात्कारी था, लुटेरा था। ये इसको नाम लेकर किया बिना इजाजत। ममता की पुलिस प्रोटेक्शन दिया और बंगाल में सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। कुछ दिन पहले माता काली को पुलिस का प्रिजन वैन में उठाया, इसलिए बंगाल में जनरोष है। आज जो हुआ है खतरनाक कदम है। ये कोई शांति का वार्ता नहीं देता है। मुर्शिदाबाद में हिंदू माइनॉरिटी है। कुछ दिन पहले वाकफ अमेंडमेंट बिल को लेकर धुलियान शामसरगंज में जहाँ 16% हिंदू है, ओनली हिंदू पलायन हुआ है। हरगोविंद दास, चंदन दास को खून किया गया है, इसलिए ये बहुत अलार्मिंग है। मिर्जापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर एक हिंदू महिला पर कन्वर्जन और शादी से इनकार करने पर ब्लेड से हमला करने का आरोप है। पीड़ित महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज दिनांक 5/12/25 को 112 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला को एक व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी घटना की गंभीरता देखते हुए मौके पर पहुंचे। पीड़िता को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण उपरांत यह अवगत कराया गया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है एवं सामान्य है, परंतु बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को बनारस रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा यह कृत्य किया गया है। पीड़िता के भाई से एक अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके अनुरूप पूछताछ की जा रही है। मेरे एवं क्षेत्राधिकारी नगर के अधीनस्थ में 4 पुलिस टीमों को गठित कर दबिश दी जा रही है। ऐसी गंभीरतम घटना में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगार जिला में अकरम खान नामक व्यक्ति को 3 दिन लगातार एक महिला शिक्षिका को परेशान करने का आरोप में पकड़ा गया। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पीट दिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की। अफगान तालिबान ने दावा किया है
कि पाकिस्तानी फायरिंग में 4 अफगान नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस घटना में स्पिन बोल्डक छामान बॉर्डर पर स्थित पाक अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट को भी नुकसान पहुंचा। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रेड फोर्ट दिल्ली के पास कुछ युवकों पर एक महिला पत्रकार के साथ गाली गलौज और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। पहले आप इस वीडियो को देखिए फिर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छी चल रही है, अमन शांति है, दंगे नहीं है, उसका सपोर्ट करते हैं। तुम्हारी बहन को चोदो, तुम्हारी होगी दल्लो की बहन के लोड़ो, चल बे चला। हाँ ला दे माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो माइक, छोड़ो, वीडियो बनाएंगी। ये सब नफरत फैला रहे हैं, सब ये जितने भी खड़े हुए ना सारे नफरत फैला रहे हैं सारे। क्या कहाँ से आए हो, कौन सी मीडिया से, ये बताओ कौन सी मीडिया से हो आप? कल तक की 100 नंबर में मिला, 100 नंबर पे बोला। हमारा मतलब ये नफरत फैला रही है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम करा रहा है और कुछ फायदा नहीं है। तुम चूतिया बन के सब देख रहे हो। हाँ। कुछ फायदा नहीं है मेरा भाई। देखिए, ये जो वीडियो आपने देखी है इसमें कुछ 5-6 लोग आते हैं। मैं बाइट ले रही होती हूँ, पब्लिक ओपिनियन कर रही होती हूँ लाल किले में, और आके मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज देते हैं, मेरा माइक छीनते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये लोग हैं कौन। और ये पहली बार नहीं हो रहा है मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ अक्सर 3-4 बार हो चुका है। मैंने बहुत इग्नोर किया है। बिना परमिशन के मेरी वीडियो बनाते हैं, बिना परमिशन की वीडियो बनाने के बाद वायरल कर देते हैं, मेरी इमेज है उसको डाउन करने की कोशिश करते हैं। और जो ये नैरेटिव चला रहे हैं, जो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मेरे खिलाफ कि मैं कम्युनल वायलेंस फैला रही हूँ। अगर ये गाली गलौज कर रहे हैं तो ये कौन सा वायलेंस फैला रहे हैं, ये बताइए। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है। सबसे बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि जब भी कोई जर्नलिस्ट है या फिर किसी ऐसे देश के मुद्दे पे बात करता है या फिर वंदे मातरम जैसे टॉपिक पे बात करता है, तो वो कम्युनल वायलेंस कैसे फैला सकता है? वो तो देश और राष्ट्र की बात कर रहा है। मतलब ये तो ऐसे मुद्दे, सामाजिक मुद्दे उठा रहा है, तो जाके अगर हम पब्लिक से बात कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या हो गया? और कौन सा मैं कम्युनल वायलेंस फैला रही हूँ? मुझे बार बार टारगेट किया जाता है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है, और कई बार आते हैं। अगर कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है, कल को आके मुझे मार देते हैं। कई बार ये लोग देखने को मिलता है बहुत कुछ रखते हैं, चाकू, छुरी, ब्लेड, ये सारी चीजें रखते हैं, आके मुझे मार देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये कुछ मतलब ये कुछ एक ही जगह से आते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह से आते हैं, एक ही जगह से आते हैं, प्लानिंग के साथ में आते हैं, पूरा जो है वो प्रोपेगेंडा रच के आते हैं, कैसे कैसे करना है, आके बिना परमिशन के मेरी वीडियो बनाते हैं। ये बहुत सारी चीजें बहुत दिनों से हो रही है, काफी दिनों से हो रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ मैं, काफी टाइम हो गया इग्नोर करते हुए। और रोज रोज होता है, कैमरामैन के साथ बदतमीजी होती है, मेरे साथ बदतमीजी होती है। आप ही लोग बताइए मैं क्या ही करूँ। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने कहा कि मुर्शिदाबाद में एक कंट्रोवर्शियल फाउंडेशन सेरेमनी से जुड़ी धार्मिक प्रोसेशन के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट के कर्तव्य है, जो कुछ आवश्यक कार्यवाही जरूर करना है। आज पीसफुल प्रोसेशन वाज देयर, इवेंट वाज carried in a very peaceful manner. We are watching. Under no circumstances will anybody be allowed to take the law into their hands. What we need is peace in society. I appreciate and compliment the people of Bengal for taking this event very calmly, peacefully, and the Supreme Court, the High Court also has made it very clear that it is a bounden duty of the state government to maintain law and order. As governor, I will not allow anyone to encroach into the maintenance of law and order in the state of West Bengal. चाइना की नेवी ने एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग से पैसिफिक में एरियल ड्रिल्स की। जापान के डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक इसके बाद जापान ने अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए। इटालियन पुलिस ने फ्लोरेंस में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है जो एक रेजिडेंशियल गैस पाइप को आग लगाकर ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी गैर कानूनी रूप से वहां रह रहा था और उसे डिपोर्ट कर दिया गया।
अलवार में खजुराहो इंटरसिटी एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया और पटरी पर सीमेंट के ब्लॉक्स रख दिए। ट्रेन की गति कम होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। इस स्थान पर बदमाशों ने मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश भी की। पटरी पर रखे सीमेंट ब्लॉक मालगाड़ी के नीचे फंस गए, लेकिन लोको पायलट की सतर्कता और कम स्पीड से बड़ा हादसा टल गया। कल रात में नदबई और खेड़ली के बीच में ये किलोमीटर 97/1 पर एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक के ऊपर स्लीपर रखने की घटना का रिपोर्ट किया था। इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए पहले स्लीपर को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हटवाया गया है। 21:25 यानी कि 9:30 बजे रात की ये घटना है और लगभग 20 मिनट में गाड़ी उस साइड से रवाना हुई है। इसके बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने आरपीएफ के कमांडेंट वगैरह वहां पे उन्होंने साइट को विजिट किया था और वहां पे प्रारंभिक जांच की थी। प्रारंभिक जांच में इसमें कोई मिसक्रिएंट की एक्टिविटी को इसमें पाया गया है, जिसके बाद सिविल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है। सिविल पुलिस ने भी वहां पे विजिट किया है और आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। इसमें रेलवे की जो प्रारंभिक इंक्वायरी है उसमें ये मिसक्रिएंट ही एक्टिविटी पाई गई है और इसमें आगे हम सिविल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की एंटिसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने गैर सहयोग और राष्ट्रीय स्तर पर सेंसिटिव समय में सोशल मीडिया पोस्ट को वजह बताया। अगला जो मेरा स्टेप होगा वो मैं अपने वकील से परामर्श ले रही हूँ। अब उनसे राय मशवरा करने के बाद जो भी ठीक लगेगा वो किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि भारतीय बैंकों में 78,000 करोड़ रुपए की रकम अभी तक अनक्लेम्ड पड़ी है। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में हजारों करोड़ रुपए दावा रहित पड़ी है। सही हकदार की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कि सरकार को अगर कुछ दे दिया तो फिर वहां तो वन वे ट्रैफिक है। एक बार दिया तो दिया, फिर वापस नहीं आता है, जा गया। यही सबका अनुभव है। लेकिन जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है तो काम कैसे होता है। अगर कल अच्छी कर रही है ना तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है। और इसलिए हमने एक और अभियान लिया है। आपको सुनकर के ताजुब होगा, और अभी अखबारों में उसकी अखबारों वालों की नजर नहीं गई है उस पर। मुझे पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी। आज के बाद हो सकता है चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश के बैंकों में हमारे ही देश के नागरिकों का 78,000 करोड़ रुपया, 78,000 करोड़ रुपये अनक्लेम पड़ा है बैंकों में। पता नहीं कौन है, किसका है, कहां है। इस पैसे को कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास करीब 3,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। 9,000 करोड़ रुपए डिविडेंड का पड़ा है। और ये सब अनक्लेम पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं उसका। ये पैसा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का है। और मेघालय जूडो एसोसिएशन ने सब जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2025-26 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इसके साथ शिलोंग में कोच जोनाथन लारेंसांगा को भी सम्मान दिया गया। coaches and parents
of medal winners, the sub-juniors, which was held in Hyderabad. We are happy to say that from our state, we've got Edric, who won the silver medal, sub-juniors, and Erika, who won bronze medals. So we are very, very grateful to them for being a pride to our states and also to the associations. So from the association side, we have got nothing to give them, just facilitate them. अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।